हाँ जी साथियों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ दानगढ़। जैसे कि आप सबको पता है, इंसाफ दी आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन PACL के बारे में जो भी एक्टिविटी करता है हम आपको बताते रहते हैं। आज हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि पल्ज की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी 50 किले ज़मीन जो मानसा डिस्ट्रिक्ट में बलाडा जो विधानसभा हल्का है उसमें पड़ता था, जिसके ऊपर पिछले 4-5 साल से EM जो पल्ज का एक EM था हरदेव, उसने कब्जा कर रखा था। जब लोग उसके पास उसकी ही टीम जाती थी तो वो बुरा भला उनको बोलता था। उसकी लड़ाई हम लीगली और आंदोलनी लड़ते रहे हैं और कोर्ट में भी हमने उनके ख़िलाफ़ केस किया था कि जे इस प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज़ कब्जा करके बैठा है, इसके ऊपर कोई राइट नहीं बनता। और पिछले समय वो कभी पुलिस को पैसा देकर, कभी तहसीलदार को पैसा देके, कभी SDM को पैसा देके, या किसी मंत्री को पैसा देके वो ज़मीन पे उत्ते काबज रहा और संगठन की पेश नहीं चली। पर संगठन ने भी ठान रखा था कि हम इसको इस ज़मीन से हटाकर ही रहेंगे। और जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये पल्ज की ज़मीन है, आप लोगों के पैसे के द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर अब धारा 145 लग चुकी है। अब इस प्रॉपर्टी की जो इनकम आएगी वो सरकार के खजाने में जाएगी और वहाँ से ही निवेशकों का पैसा देने में वो जो आएगी आमदनी, वो उसमें जुड़कर निवेशकों को पैसा मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह जो भी ये प्रॉपर्टी आप दूर तक देख रहे हो, ये सारी पल्ज की है। और अगर हम सभी जगह जहाँ भी प्रॉपर्टी है पल्ज की, हम धारा 145 लगवाएं और उसकी जो आमदनी है वो सरकार के खजाने में जाए और वहाँ से ही निवेशकों को पैसा मिले, तो एक बड़ी राहत भी मिल जाएगी। तो इस सब के लिए जैसे इंसाफ दी आवाज़ समय पर समय पे ये कार्य करता रहता है, हम आपको भी कहना चाहेंगे, आप देश में कहीं भी रहते हैं और जहाँ भी PACL की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम सब की है, निवेशकों की है। उस प्रॉपर्टी को बचाना हमारा सबका राइट है, हक है, बनता है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी रहेगी तब ही लोगों का पैसा मिलेगा। जो देखो, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, ये सारी प्रॉपर्टी पल्ज की है और इस प्रॉपर्टी को बेच के ही लोगों का पैसा मिल रहा है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਾਨਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਲਾਣਾ ਤੇ ਮਦੇਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹਰਦੇਵ ਕਲਾਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ EM ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਗੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਖੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ 45 ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਰਲ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ, ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਡੱਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ SHO ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ परल पीड़ित या जथेबंदी के नुमाइंदे आते वो निराश। हम वकील साहब से आपकी बात भी करवाएंगे, वो अपना विचार भी रखेंगे कि कैसे 45 लगी। आओ बात करते हैं एडवोकेट सुनील कुमार गर्ग जी से। हाँ जी गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी गर्ग साहब, क्या ऑर्डर आया SDM साहब का कुछ दिन पहले? इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, थाना SHO ने ये आशंका जताई कि जिस प्रॉपर्टी पर कोई लड़ाई झगड़ा होने का डर है, क्योंकि इस पर कोई जो शरारती अंसर हैं वो गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं और इस प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कलंदरा पेश किया SDM साहब की कोर्ट में। SDM कोर्ट साहब ने समन जारी करके जो कंसर्न पार्टी थी उनको बुलाया, जिसमें हरदेव सिंह को बुलाया गया और दूसरी तरफ से इंसाफ की आवाज़ को बुलाया गया, जिसकी तरफ से मैं पेश हुआ जी। तो उन्होंने दोनों पार्टीज़ का पक्ष सुना। हम चाहते थे कि वहाँ पर 145 CRPC लगे। हरदेव सिंह जो वहाँ पर गलत तौर पर काबिज था वो चाहता था कि ना लगे। तो उन्होंने दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद इस फैसले पर पहुँचे कि जो इस प्रॉपर्टी पर 145 CRPC लगनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो इसका गलत प्रयोग कर रहा है। अगर इसकी 145 लगेगी तो ही इस प्रॉपर्टी की प्रॉपर तौर पर जो बोली है वो हो सकेगी और जो इसकी कमाई है इस प्रॉपर्टी की वो सरकारी खजाने में जमा हो सकेगी, ताकि जो पर्ल के इन्वेस्टर हैं उनकी भरपाई हो सके। वकील साहब, जो इसकी इनकम है जो सरकार के खजाने में जा रही है, वो उसका हकदार कौन है? इसके रिगार्डिंग मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने लोढा कमेटी बनाई थी। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, उसमें उन्होंने मिस्टर लोढा को इसका चेयरमैन बनाया। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा था कि जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनके हकदार पर्ल के इन्वेस्टर हैं। जो आदमी पर्ल में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके पास उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो लोगों की भरपाई उनकी प्रॉपर्टी से होगी। अच्छा वकील साहब, एक बात ये बताएं, अगर ये पैसा लोढा जी ने मंगवाना हो तो उसके लिए उन्हें क्या क्या करना होगा? सर, उन्होंने जो सारा पर्ल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे इंडिया के बाहर हैं, उन्होंने उनकी बोली करवाएंगे। वो उनकी बोली करवा के जो उनका माल्य है, जो उनकी इनकम है, वो इकट्ठी करके वो लोढा कमेटी के पास जमा हो जाएगी।